उससे बात करें. Tell him with what expectation you have come to his house. उसे बताएं किस उम्मीद के साथ आप आज उसके घर में आए हैं. He is our savior. वो हमारा उद्धार करता है. He is our healer. वो हमारा चंगा करता है. He is our redeemer. वो हमारा छुटकारा देने वाला है. He is our all in all. वो हमारा सब कुछ है. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर. Amen. वो महान परमेश्वर है. He is the Almighty God. And he is present here. और वो यहाँ मौजूद है. You have not come to see a man. You have not come to a man. You have come to the living God who is alive. आप एक मनुष्य को देखने नहीं, एक मनुष्य के पास नहीं आए, लेकिन आप उस परमेश्वर का आमना सामना करने आए हैं जो जीवित है. Amen. And today और आज our service is destroying the strongholds of cancers and terminal diseases. हमारी जो सभा है वो कैंसर्स और जानलेवा बीमारियों के गढ़ को नाश करने की सभा है. तो अगर आप यहाँ पे हैं और आपको कैंसर है या आपके किसी परिवार आपका कोई सदस्य है अगर उसको कैंसर है, And if you are here, if you or anyone in your family has cancer, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है. I have a good news for you. आज प्रभु यीशु मसीह शैतान की सारी सामर्थ जो कैंसर के द्वारा काम करती है उसको नाश कर देगा. Today the Lord will destroy every power of the devil that works through cancer against you in Jesus name. Amen. अभी हमारे पास समय नहीं था, बहुत सारी और गवाहियां आपने सुना. प्रभु यीशु मसीह ने पहले से आपने देखा आज कितने सारे कैंसरों को परमेश्वर ने चंगा किया. We didn't have much time, but you've seen how many cancers Jesus has already healed in this house. और जो उसने करा What he has done, वो करता है. he still does today. और जो वो करता है And what he does today, वो करता रहेगा. he will keep on doing in the क्योंकि days वो to come. बदलता नहीं है. Because he does not change. Amen. तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करते हो कि आज आपका दिन है अपनी चंगाई ग्रहण करने का? So I want to ask you a question. Do you believe today is your day to receive your healing? Amen. और मैं चाहता हूँ आज का वचन आप ध्यान धर कर सुने. And I want you to hear today's word intently. क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि वचन के बाद जल्दी से हम जाके प्रार्थना करा लेंगे. नहीं, आप परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं समझते. Because many people think after the word we'll go and quickly get prayed. No, you don't understand the principles of God. हर एक परमेश्वर के राज्य में चंगाई, चमत्कार, छुटकारा वचन को फॉलो करता है. Every sign, wonder, miracle, healing follows the word in the kingdom. Amen. Amen. बाइबल बताती है मरकुस 16:20 में कि चेले अलग अलग जगह जाकर प्रचार करने लगे और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ वहां जाता था और जो वचन वो सिखाते थे उनको चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रमाणित करता था. The Bible tells us that the disciples were going in different places and preaching the gospel, and the Bible says Jesus himself was going with the disciples and proving the word that the disciples were preaching by signs and wonders and miracles. As we lift the word of God this morning, जब आज सुबह हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हैं, healings will follow, चंगाइयां उसके पीछे आएंगी, breakthroughs will follow, छुटकारे उसके पीछे आएंगे, miracle will follow, चमत्कार उसके पीछे आएंगे. God will always confirm his word that is preached. परमेश्वर हमेशा अपने वचन को प्रमाणित करेगा जिसका प्रचार किया जाता है. Amen. आमेन. If you believe that, I want to hear your loud amen. अगर आप ये मानते हैं तो मैं आपका आमेन सुनना चाहता हूँ. Amen. So आज मैंने कुछ चाबियां मैं आपको देना चाहता हूँ. बोलो चाबियां. I want to give you some keys. Say keys. हाँ, तो मैं चाबियां फेंकूंगा I will throw the keys from here और आप पकड़ लेना. and you catch them. या तो आप वो मसीह हो जो गिड़गिड़ा रहे हो और प्रभु कह रहे हो प्रभु खोलो, प्रभु खोलो. Either you're a believer who is begging and knocking at the door, Lord open the door, open the door.
हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस से पहले कि खटखटाओ तो खोला जाएगा। Yes, Jesus said before the cross that if you knock, it shall be opened. Yes. या तो खटखटा लो, Either you can knock या the door. उसने पतरस को कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी देता हूं, या तो चाबी लगाओ और खोलो और प्रवेश कर लो। Or he told Peter, I'm giving you the keys to the kingdom. Use the keys and open the door and enter in. अगर चाबी है तो खटखटाने की जरूरत नहीं है। If you have the key, you don't need to knock on the door. Amen. Amen. So tonight, today, this morning, okay, आज के दिन, आज की सुबह it's your day to catch the keys. आपका दिन है कि आप अपनी उस चाबी को पकड़ लो जो आपको चाहिए। Amen. What are keys? चाबियां क्या होती हैं? Keys are the revelation truths in the kingdom. चाबियां प्रकाशन के सत्य हैं राज्य के। If you got the keys, अगर आपको चाबी मिल गई, Satan cannot bound you in that area anymore. शैतान आपको उस क्षेत्र में बंदी बना ही नहीं सकेगा दोबारा फिर कभी। Amen. So, hear the word carefully. वचन को ध्यान से सुनना। The anointing or the power of God is designed to destroy every sickness. परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी रची गई है कि हर एक बीमारी को नाश कर दे। The Bible says in Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by devil, for God was with him. प्रेरितों के काम 10:38 किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक पवित्र आत्मा और आग से, सामर्थ से किया कि वो बीमारों को चंगा करता और दुष्ट आत्मा के सताओं को आजाद करता गया। आप यहाँ पे मौजूद हैं? Are you here? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने क्यों किया यीशु नासरी का अभिषेक? Why did God anoint Jesus? कि वो भलाई करता रहा। That he would do good. और वो भलाई क्या है? What is that good? बीमारों को चंगा करता फिरा। Healing the sick. परमेश्वर, कई ईसाइयों की नजर में नहीं, मगर परमेश्वर की नजर में बीमारों को चंगा करना भलाई करना है। Not in the sight of many Christians, but in the sight of God, healing is a good. Amen. आपकी बाइबल में है? Is it in your Bible? Amen. Amen. So the anointing or the power of God has been designed to destroy the stronghold of sickness. तो परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ्य ऐसी रची गई कि बीमारी के बंधन को नाश कर दे। मगर केवल क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य है, वो ऑटोमेटिकली आपको सेट फ्री नहीं करेगा सामर्थ्य। But just because the power of God is there, it will not automatically set you free. अगर ऑटोमेटिकली होता तो हर एक मसीह आज चंगा होता और कोई भी मसीह बीमार नहीं होता। If it were automatic, then every believer would be healed and no believer would ever get sick. यानी आपका एक उसमें आपकी भागीदारी है। It means you have a part to play in this. आपकी एक, बोलो मेरी एक भागीदारी है। Say, I have a part to play. और आपको वो सीखना है। And you have to learn. स्पेशली आज वो लोग जो बीमार हैं और अपनी चंगाई चाहते हैं, मैं चाहता हूं आज किसी को मत अपने आप को रोकने देना कि आप वचन सुन सको। Especially those of you who are sick and you want to be healed, do not let anyone stop you from hearing the word today. Amen. Amen. बोलो आज मेरा दिन है। Say, today is my day. बोलो आज मेरा दिन है। Today is my day. Amen. So Psalm 66:3 इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके सामर्थ की महानता के द्वारा उसके जो शत्रु है वो घुटने टेक देते हैं। Psalm 66:3, it says, through the greatness of your power, your enemies submit themselves to you. Amen. कैसे टेकते हैं उसके दुश्मन घुटने उसके सामने? How do his enemies submit to him? उसकी सामर्थ की महानता के द्वारा। Because of the greatness of his power. यानी अगर कैंसर को आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक हायर सामर्थ को उस कैंसर के अगेंस्ट आना पड़ेगा और फिर वो कैंसर घुटने टेकेगा और निकल जाएगा वहां से। It means if cancer has to leave your body, a greater power has to anticipate, has to enter in, and then that cancer will leave you. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many understand? अगर एक ऊंची सामर्थ या एक बड़ी सामर्थ If a greater or a higher power आती है उस सामर्थ के विरोध में जिसके द्वारा कैंसर, सारी बीमारियां चल रही हैं, तो जो ये
जो ये शैतान की ताकत है, ये घुटने टेकती है और वहां से निकल जाती है. If a higher or a greater power comes against that power which brings cancer or any other sickness, then that lower power that brings the sickness has to bow down and leave. इस बात को समझो. Understand? अगर किसी ने किसी जमीन पर या घर पे कब्जा कर दिया क्योंकि उसकी लोकल थाने से जान पहचान है, If somebody came and took over somebody's property because they know some local और वो police, आपका घर था, वो आपकी जमीन थी, and it was your house, your land, और आप उसको बोल रहे हो, मगर वो उस पुलिस वालों को बुला लेता है जिसके साथ उसकी जान पहचान है, but you're telling him to leave your property, but he calls those police people that he knows, तो आप उसको नहीं हटा पाओगे. you would not be able to remove मगर them. अगर आप उस थाने से ऊपर किसी हायर पावर के द्वारा उसके पास जाओगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा. But if you go to them through a higher power than that police station, they will have to leave. मगर मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है. But I have a good news for you. आपको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है. You don't have to try and please anybody. सबसे महान सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है. The greatest power is in the name of Jesus. बाइबल कहती है जब आप उस नाम को पुकारते हो जो सब नामों से श्रेष्ठ है, हर एक दूसरी ताकत उसके सामने घुटना टेक देती है. The Bible says when you call out to the name of Jesus, which is above every other name, every power, every name bows down before that name. ओके, समझ आ रहा है आपको? You understand? सो मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि मैंने जब यीशु को नहीं जाना था, Because when I did not know Jesus, जब मैंने उद्धार नहीं पाया था, when I did not receive तो salvation, मैं सोचता था कि शायद यीशु मसीह सबसे कमजोर ईश्वर का रूप है. I used to wonder that Jesus is the weakest form of God. हाँ, लोग आज बोलते हैं People say today, "ए, तो अपने आप को नहीं बचा पाया, क्रूस पे चला गया." he couldn't save himself अरे क्योंकि वो सुसमाचार को नहीं जानते. because they do not know the gospel. वो इसीलिए क्रूस पे गया He went to the cross कि आपको और मुझे एक अनंत जीवन दे सके. so that he can give you and me an eternal life. आमीन. और मैं हमेशा इस बात को बोलता And I हूँ, always say- यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान नहीं है. प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को रचने वाला, इस ब्रह्मांड को रचने वाला वो परमेश्वर है जिसने आदि से हर एक चीज की सृष्टि करी है. वो कहता है मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूं. यदि कोई मुझ में है और मर भी जाए तो भी मर के ना मरेगा, और जो कोई जीवित है और मेरे नाम में विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है. Jesus is not the God of Christians. He is the God who created mankind and the entire universe. He is the one who says, I am life, I am the first and the last, I am the Alpha and the Omega, and he who believes in my name, even though he dies, he will live. आमीन. बाइबल हमें बताती है कि यीशु के नाम के आगे दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती हैं. The Bible tells us that at the name of Jesus, the demonic spirits tremble. पहला यूहन्ना 3:8 में बाइबल कहती है इस रीति से, इस कारण से, इस वजह से, इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे. 1 John, the Bible says, for this reason, for this very purpose, Jesus was manifested, that he would destroy the works of the devil. आज शैतान का हर एक काम नाश होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Every work of the devil is being destroyed today in the name of Jesus. आमीन. मेरे पीछे बोलो, आज मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरी देह से शैतान का हर एक काम पूरी रीति से नाश होता है. Say this after me today. Every work of the devil is completely destroyed from my body, from my family, from my life, in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.